All right. So we were discussing regarding the special contract, contract of bailment. Contract of bailment is a contract where there are two parties. One is bailer and one is bailee. Bailer is giving his own goods to bailee for a specific purpose. And this contract of bailment says the purpose, when the purpose is getting over or when the purpose is getting resolved, the goods are supposed to be returned back to the bailer, or it can be disposed of as per the instruction of the bailer, because bailer is the owner of the goods, so he is having the right to make a decision whether the goods should be returned to him or it can be disposed of, no, whatever decision he is going to make it. Then apart from that, we have learned that rights and duties of bailer towards bailee. So this is the thing which we have discussed in the last lecture: rights of the bailer and duties of the bailer. Now today we are going to understand regarding what are the various rights and duties which have been allotted by the act towards the bailee. Right? Bailee is a second party. In fact, if you will take my opinion, then I can say that bailee is more responsible than bailer. See, bailer is the owner. Of course, bailer is going to have all the risk and all the responsibilities of the goods on him. But since bailee is not the owner, but still the possession of the goods are in the hands of bailee. So bailee has to be very, very careful when he is handling the goods, because many a times it has been noticed, because of the carelessness of the bailee, the goods are getting lost. And if that situation arises, then bailer is having full right to go to the court and ask for the compensation. कई बार ऐसा होता है कि जो बेली है, जिसने गुड्स लिए हुए हैं एक पर्पस के लिए, उसकी केयरलेसनेस की वजह से चीजें या तो गुम हो जाती हैं या तो खराब हो जाती हैं, तो इससे बेलर का लॉस होता है। पर ये जो कायदा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये बेलर को पूरा अधिकार देता है कि वो कोर्ट में जा सकता है और अपने डैमेजेस के बारे में पूछ सकता है। राइट? तो यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है, पर उसके अलावा उसके राइट्स क्या क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द राइट्स ऑफ द बेली। द फर्स्ट राइट ऑफ बेली इज राइट टू नो about the title of the goods. Now, as far as the word title over here is concerned, title means in whose name the goods are, or who is the official owner of the goods which has been given to bailee. Right? इसको समझने के लिए I'm just giving you one example. Let us say A and B are two best friends. A is possessing one car, which is always in the parking of Mr. A. And one day, Mr. B wanted to borrow that car for his family visit or for his family trip. So what B has done, B put one request in front of A and said that, can I borrow your car for 2 days? I want to take my family for, one small trip. Since they are the best friends, so A ने मना नहीं किया, A ने चुपचाप से चाबी लाके दे दिया कि you go. Okay, now B is driving the car along with his family and they are enjoying, they were going at some place. In the middle of the road, somebody stopped their car, and that somebody was Mr. C. Right? Somebody stopped the car and he started abusing Mr. B. B को गालियां देने लगा। अब B को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है कौन बंदा जो मुझे गाली दे रहा है, और बार बार उससे बोल रहा है चोर चोर। नाउ बी को थोड़ा सरप्राइज हुआ, एंड सी ने क्या किया, तुरंत फोन करके पुलिस को भी बुला लिया। बी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सी ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस आ गई। अब उनके मिडिल ऑफ द ट्रिप जो है वो पूरा खराब हो गया। सी is saying that I am the owner of the car and he is a thief, he has stolen my car, और ये अपनी फैमिली को लेके जा रहा है। सी is saying that no, I have not stolen the car, in fact this car belongs to one of my friend, he only has given me। वो सारे डिटेल्स बता रहे हैं। अब यहाँ पे सी तो मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट सी ने कुछ प्रूफ्स भी बताए कि इस कार में ये जगह पे मेरे पेपर्स पड़े हुए हैं, ये जगह पे आपको आरसी बुक मिल जाएगा, ये जगह पे आपको इसका पीयूसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो सारी बातें सही निकली। और मजे की बात तो ये हुई कि उस
पेपर्स जो निकले कार में से, वो सारे के सारे पेपर्स ये बता रहे थे कि मिस्टर सी उनका ओनर है। मिस्टर सी वॉज द ओनर ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे बी के पास तो कुछ प्रूफ ही नहीं है। तो इस तरह के जो कंडीशंस होती है ना, जहाँ पे पर्सन अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता है, तो पुलिस फॉर द टाइम बिंग उनको कस्टडी में ले लेती है। अब यहाँ पे तो इतनी बड़ी महंगी कार की चोरी का मामला था, तो बी को अंदर कर दिया। नाउ दिस मैटर हैज गॉन टू ए। ए को पता चला कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बी जेल में है। बी आया उस पुलिस स्टेशन में और बोलने लगा कि नहीं नहीं, ये इसका कोई गलती नहीं है, मिस्टर सी मेरा भाई है, रियल ब्रदर है, और क्योंकि उसके वहां पे पार्किंग नहीं है तो मेरी पार्किंग में रखता है कार, तो मैंने ही उसको चाबी दे दी थी। गलती इतनी थी कि मैंने पूछा नहीं था, सी को पूछना चाहिए था, और सी को बताया भी नहीं था। इस तरह से जो मैटर था वो सॉल्व किया गया। अब इस पूरे मामले में भले ही मैटर सॉल्व हुआ, अगर आप उसकी जगह पे होते तो कितना मेंटल ट्रॉमा होता। जस्ट इमेजिन दैट यू आर गोइंग फॉर अ फैमिली ट्रिप, right, with your entire family, with your kids and all, and suddenly somebody is stopping your car, calling the police, and the police is taking you to the custody. How much mental trauma you are going through. So in this case, Mr. B, who was the bailee, because he has taken the goods, car has been taken by bailee. It was his full right to know about the title of the goods. That means who is the real owner, whether B or C. It was the duty of the B to tell it was duty of A to tell B that I am not the owner, my brother is the owner, right? All the papers are in his name, and I'm giving you the car at my risk. If he would have done in that way, then this B would not have used that power. अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मेंटल ट्रॉमा हुआ, जेल में गया, नाम खराब हुआ। नाउ ये कानून बी को पूरा अधिकार देता है कि वो कोर्ट में जा सकता है। एक तो कार उधार लिया उससे, कार अपनी तो है नहीं, फैमिली ट्रिप के लिए उधार लिया, और ऊपर से अभी क्लेम कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है, और उसको जितना भी मेंटल ट्रॉमा हुआ, जो भी उसके इश्यूज हुए थे, वो सारी चीजों का डैमेजेस वो ए से वसूल कर सकता है। दैट इज अ राइट ऑफ हिज, right of bailee means to know the title. If it is not given to him, or the bailer is not the real owner, still he is giving the goods to the bailee without telling him that I am not the owner. Then if there is any kind of issue or any kind of problem or any kind of damages which bailee is going through, bailer have to pay for it. That is known as right to know about the title of the goods. I hope this point is clear to you. Right to know about the title means right to know that who is the real owner of the goods. ये कई बार ऐसा होता है कि आपने चीजें तो ले ली और बाद में पता चला कि वो चीजें तो उस पर्सन की है ही नहीं जिसने आपको वो यूज करने के लिए दिया था। Right, so whenever this thing is happening, it is a right of the bailee to know about it. So that is the first right. Now we are proceeding for the second right. The second right is right to claim compensation in case of faulty goods. If the goods are faulty, if there is some fault in the goods, and because of that, if bailee is suffering from any kind of loss, then he can claim for the compensation. जितना भी उसका खर्चा होगा, जितना भी उसका नुकसान होगा, वो सारा का सारा नुकसान का he can claim compensation for that. Right, in case of what? In case of faulty goods. अगर उन गुड्स में कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से बेली को कुछ नुकसान होता है, तो बेली को पूरा राइट है उन चीजों का कॉम्पनसेशन लेने का। Yesterday we have taken one example, no, that at hill station, one person have borrowed the horse on a rental basis for riding, and suddenly he fell down, and later on he came to know that the seat which was tied with the horse was having some fault. It was not proper. So it was the right of that person to claim the damages or the hospital bill from the person who has given that faulty goods to him. So that is the right. So whenever you are borrowing anything from anyone, and if they are faulty, right, if there is any kind of problem into that, then it is your right to ask for the compensation for that.
So that is a very simple thing. If the goods are faulty and if the bailee is suffering from any kind of loss, he can ask for the compensation for that. Then the next one is right to claim necessary expenses. If while using the goods of bailer, if bailee is spending anything, then it is a right of the bailee to ask for that expenses. For example, if you have given your clothes to laundry for dry cleaning purpose, right? And general charges of dry cleaning, let us say it is 250 or 300, that is the board which that particular person has kept, that for one cloth he is charging 250 rupees or whatever charges are there, and you agreed upon that and you have given your goods to him. But later on, when he started the dry cleaning work on your real clothes, he felt that there is need to use more amount of chemicals or more amount of dryer and all. So the expenses were more. So when he is going to deliver the goods to you, he can ask you for that. That the normal charges are 250, but when we were doing the work on your clothes, it went up to 500. So now you have to pay 500. At that time, as a bailor, you cannot say no. कह रहे तुमने तो बोर्ड लगा के रखा है 250, क्या लूट मचा के रखी है क्या? अगर आप ऐसा सब करेंगे तो कोई नहीं चलेगा. Because the bailee is having all proofs that he has made extra expenses on your clothes. So you have to pay that. That is a right of the bailee to claim necessary expenses. Whatever expenses he has made, you have to pay it. Similarly, if you are giving your car or your bike for the service purpose or for repairing purpose to the mechanic, and the mechanic has get it done through some other person. कई बार ऐसा होता है ना कि वो मैकेनिक के पास वो मशीन नहीं होती है या वो पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को रिपेयर कराने के लिए किसी और को देता है, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है. तो जो भी वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए वो अपनी जेब से नहीं भरेगा, भले ही उसने आपको पहले नहीं बताया, वो खर्चा सब बाद में हुआ, सडनली हुआ. पर ये कानून उनको अधिकार दे देता है बेली को कि अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गया और वो प्रूफ्स के साथ बता सकता है कि ये आपकी वजह से ही हुआ, आपके गुड्स के ऊपर ही हुआ, तो ही इज हैविंग द क्लेम फॉर दैट. राइट, ही कैन क्लेम फॉर दैट. क्योंकि वो चीजें रिपेयर किसकी हुई? बेलर की रिपेयर हुई ना. चीजों में जो भी अपग्रेडेशन हुआ है या जो भी अपडेशन हुआ है, वो तो उन बेलर के पास ही जाने वाला है, बेली के पास तो रहने वाला नहीं है. तो फिर बेली क्यों उसका खर्चा उठाए? इसके लिए बेली इज हैविंग द राइट to claim necessary expenses if any he has made it. Then another right is right to return the goods to any of the joint bailer. Now, this joint bailer term we have not discussed before. Joint bailer means whenever there is more than one bailer, whenever you are having more than one owner of the same goods, whatever goods has been given to you is it has come, let us say, from one family. So goods belongs to one family, that means there are many owners, those who are the family members. You have taken the goods and later on you felt that that goods are giving you some trouble or some problem, and when you went over there to the home and you said that I want to return these goods to you, and that family is saying that no, that particular family member who has given you the goods is not available now, we cannot take the goods back. They cannot say like that because they all are the joint bailer, right? If the goods belongs to one family, that family members are the owners of that particular goods. So the particular person who has given you the goods, if he is not available in the family at that time, then the remaining family members cannot deny to take it back. They have to, because that is the right of the bailee. Similarly, if the goods are belonging to one partnership firm, so all partners are the part owner of the goods. And if you have got the goods from one particular partner who has gone for some reason out of station or wherever he wants, later on you felt that the goods are very risky, you cannot keep that in your custody and all, so you wanted to return it to the real owner. So these real owners, the remaining partners, cannot deny to take the goods back. They have to take it because that is a right of the bailee to return the goods to any of the joint bailer. Joint bailer means the other owner, like family or in the partnership form, or in the case of husband and wife, let us say there are only husband and wife. So all the goods are belonging to both.
So if husband is not available, wife cannot say that, no, I cannot take the goods back because my husband is out of station and all. She cannot say like that, because act has given the right to the bailee that you can return the goods to any of the joint bailer. That is another right which has been given to bailee. Then the next is right to know about the defect in goods, if any. This is very important. See, he can claim if anything is happening to him, but before using or before taking the charge, it is the right of the bailee to know about whether the goods are having any defect or not. He can even ask also before taking the goods. अगर मैं अपनी कार मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ रिपेयरिंग के लिए, तो उसको पूरा राइट है, वो पूछेगा मुझसे कि सर इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि कल को कोई और आके क्लेम कर लेगा. लाइक नो, ही इज आस्किंग, एंड इट इज माय ड्यूटी एज अ बेलर टू इन्फॉर्म हिम. अब हम लोगों ने कल सीखा था ना ड्यूटीज ऑफ बेलर, दैट राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द डिफेक्ट इफ ही इज नोइंग अबाउट इट. जो चीजों के बारे में उसे पता है डिफेक्ट के बारे में, वो बेलर का ड्यूटी है बताना, और ये राइट बन जाता है बेली का ये चीजें जानने का. राइट, सो दिस इज हाउ द राइट्स आर रिलेटेड टू दैट. नाउ यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, जितनी भी राइट्स दिए गए हैं यहाँ पे, all these rights are related to the goods. Because of goods he is spending some money, because of goods he is suffering from losses, because of goods, you know, he is having some or other problem. So act has given full-fledged right about the goods to the bailee, that if he is suffering from any kind of problem or any kind of issue, he can ask for the damages, he can claim for it, he can go to the court and court support also to the bailee. कई बार ऐसा होता है, जो ओनर रहता है ना बेलर, नुकसान भी हो गया वो भी भरेगा और बेली को भी नुकसान भर के देगा, ऐसा भी होता है. तो बेली को भी कई तरह के राइट्स दिए गए हैं, लेकिन इन राइट्स के साथ साथ बेली इज हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एज वेल. और ये जितनी भी जैसे राइट्स हम लोगों ने नोटिस किया कि गुड्स से रिलेटेड है, वैसे ही जो ड्यूटीज है वो भी गुड्स से ही रिलेटेड है. नाउ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ बेली इज ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर. Reasonable care means he has to take care of the goods because goods are in the custody of the bailee. बेलर ने भरोसा करके अपनी चीजें बेली को दी हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए. तो बेली का पूरा राइट, पूरा ड्यूटी है कि वो उसका ठीक तरीके से ध्यान रखे. अगर उसने ध्यान नहीं रखा और चीजों का नुकसान हो गया, then bailor can go to the court and he can ask for the compensation. In fact, he can ask that I want the similar product, right? I want the same product, the same value product, and bailee have to give, because that is a duty of bailee to take care of the goods. That is duty of reasonable care. कई बार हम लोग जब विजिट के लिए कहीं जाते हैं, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, सपोज हम लोगों को कहीं और स्टेट में जाना है और एक पर्टिकुलर स्टेशन से ट्रेन चेंज करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आपको उत्तराखंड जाना है और दिल्ली तक आपको टिकट मिल गया एक ट्रेन का, और दूसरी ट्रेन दिल्ली से आगे जाएगी उत्तराखंड के लिए, तो आपको दिल्ली में उतरना पड़ेगा. और लेटेस्ट से आप सुबह दिल्ली पहुंचे और आपकी जो दूसरी ट्रेन है वो शाम को है, दैट मीन्स पूरा दिन आपके पास है. तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घूमना पसंद करते हैं कि दिल्ली तक आए हैं तो थोड़ा देख भी लेते हैं कि क्या क्या है. अब ट्रैवल कर रहे हो तो सामान भी बहुत होगा, अब सारा सामान लेके तो दिल्ली घूम नहीं सकते. तो आपकी सुविधा के लिए रेलवेज ने क्लोक रूम्स का इंतजाम किया है. सॉरी, क्लोक रूम्स, जहां पे आप अपना सामान रख सकते हो. आपको थोड़ा सा रीजनेबल रेंट पे करना पड़ेगा, and then you can go out, you can, you know, enjoy your day, and then after coming back you can take your goods back or you can go ahead. तो लेटेस्ट से आपने गुड्स दे दिए वहां पे क्लोक रूम में दे दिए, उन्होंने रख भी दिए, ओके, और उसके बाद आप पूरा दिन बाहर चले गए. जब आप वापस आए तब आपका एक बैग गायब था, वन बैग वाज मिसिंग. सो it is your right to ask for that. You have full right to complain to police department. You have to complain, you can complain even to the railway department, and the person who has taken the responsibility, that means the person who has taken, you know, the goods from you,
is having the responsibility to keep it in the proper place. हो सकता है उसने क्या किया होगा, जब कोई और सामान मांगने आया तो आपका भी एक छोटा सा बैग उनका समझ के उनको दे दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो ये मतलब क्या किया उसने, रीजनेबल केयर नहीं लिया। ध्यान देना चाहिए ना, जब आप सामान वहां पे रखते हो क्लॉक रूम में, तब आपको एक रिसीट मिलती है, उस रिसीट में सारी चीजें लिखी रहती हैं कि कौन सी बैग है, कितने बैग्स हैं, कहाँ पे रखे हैं, क्या टोकन नंबर है उनका, हर चीज उस रिसीट में रहता है। पर यहाँ पे क्या हो गया, वो जो क्लर्क बैठा हुआ था वहां पे काउंटर पे, उसने आपकी बैग उठा के भी किसी और को दे दी सामने से, तो ये उसने रीजनेबल केयर नहीं किया। सो यू आर हैविंग फुल राइट टू क्लेम दैट। अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि आप प्रूव कैसे करोगे उसके अंदर क्या क्या था, तो छोटे से बैग में, तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि उस बैग के अंदर बहुत ही कीमती सामान था, उसका वैल्यू कम से कम इतना होगा, ऐसा करके आप दे सकते हैं। तो पुलिस और रेलवे क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की वो बैग किसके पास गया। आपको कुछ नहीं करना, वो पूरी कोशिश करेंगे, और सपोज वो नहीं दे पाए तो रेलवेज आपको उसका नुकसान भर के दे देगा। आपको सिर्फ प्रूव करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या था, बिकॉज दैट इज द राइट ऑफ बेलर एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू टेक केयर ऑफ दैट। इसके लिए इतने सारे केसेस हुए थे ये सारे, तो अभी वो लोग बहुत केयरफुल है। वो क्या करते हैं, रिसीट दे देते हैं, उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिख के दे देते हैं। मतलब वो अपने आप को पूरा कोशिश करते हैं कि हम जिम्मेदारी ना लें। तो जब भी आप अपनी चीजें क्लॉक रूम में या लॉन्ड्री में देते हो या किसी और को देते हो, तब आपको जो रिसीट मिलती है ना, उसको ध्यान से पढ़ा जरूर करो। कभी कभी वो क्या करते हैं, जानबूझ के कंडीशंस जो हैं उसके पीछे लिख के रखते हैं। अब थोड़ी ना किसी को ख्याल रहता है कि पीछे कुछ लिखा हुआ है। अगर हमारे पास एक रिसीट मिलती है तो हम तो आगे वाले कंटेंट ही पढ़ते हैं, पीछे पढ़ने की आदत तो है ही नहीं ना। तो आप कभी भी जब ये चीजें रखते हो कहीं पे भी, तो आप थोड़ा देख लिया करो कि कंडीशन क्या क्या है, राइट। तो वहां पे आप क्लियर करा के लेना है कि आपका आपका राइट्स क्या क्या है एज अ बेलर, क्योंकि बेली कई तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से छूटने की कोशिश करता रहता है। बट स्टिल एक्ट सेज दैट it is a duty of the bailey to take reasonable care about the goods, because he is not the owner of the goods. The goods are in the possession of bailey, so it is a duty of bailey to take the reasonable care for that. Then the another duty is duty not to make unauthorized use of goods. Whatever goods has been given to that bailey, it is not the no good to make अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ दैट। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि मेरी कार या जो बाइक मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, वो मैकेनिक मुझे दे ही नहीं रहा था, और बाद में मैंने देखा कि मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और वो मजे लेके मेरी गाड़ी यूज कर रहा। इसको बोलते हैं अनऑथोराइज्ड यूज। ऐसा ही नहीं, आपने नोटिस नहीं किया होगा, कई बार ये जो लॉन्ड्री पर्सन है ना, हमारे महंगे कपड़े, जो हमारे महंगे कोट वगैरह रहते हैं या जो ब्लेजर्स रहते हैं, ये भाड़े पे देते हैं। मतलब हमारी चीजें जो हमने भरोसा करके उनको दिया, और ये उनको बाहर अनऑथराइज देके उससे पैसा भी कमाते हैं। कार को भी वो लोग भाड़े पे चढ़ा देते हैं, मतलब ओनर को बोलेंगे कि सर एक हफ्ता और लगेगा क्योंकि वो सामान नहीं मिल रहा, और एक हफ्ते के लिए वो लोग उसके ऊपर कमाते भी रहते हैं। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज। और अगर उसने अनऑथोराइज्ड यूज किया तो उसकी सिवियर पनिशमेंट्स के लिए भी उसको तैयार रहना है, because act has already allotted duty on Bailey that he will not make any kind of unauthorized use। उसको अथॉरिटी थोड़ी दे दिया कि ये भाड़े पे दे दो या किसी और को दे दो, नहीं। कई बार वो अपने फ्रेंड्स को भी दे देते हैं कि हाँ ये बाइक मेरे पास आया और रिपेयरिंग के लिए, तू लेके चला जा, कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीजें अनऑथोराइज्ड हैं। सो वन पर्टिकुलर बेली इज नॉट ऑथोराइज्ड to make any kind of misuse of the goods which has been given to him. That is the second right. Then the another right is, one second, duty not to mix bailers goods with his own। वो बेलर की दी हुई चीजों को अपनी गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है। जैसे अभी इंडस्ट्रियल एरिया, पता नहीं आपने विजिट किया है या नहीं, वहां पे क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर एरिया में कई तरह के फैक्ट्रीज होती हैं। और if you make a survey in detail, you will find that most of the industries or most of the factories are producing almost similar product, but they are competitor, of course they are competitor of each other, but still whenever the need comes they help each other। वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं।
तो समझो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है एक इंडस्ट्रियल एरिया में, और थोड़ी दूर एक और भी फैक्ट्री है जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जो मेरे ही तरह की चीजें बनाता है। पर जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग राइवल नहीं रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। सो लेट अस से एक दिन मेरी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, अब मुझे चाहिए रॉ मटेरियल। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि कैन आई बोरो सम रॉ मटेरियल फ्रॉम यू, आई विल रिटर्न इट टू यू। मैंने वहां से रॉ मटेरियल ले लिया और मैंने मेरे रॉ मटेरियल के साथ उसको मिक्स कर दिया। तो ये मुझे नहीं करना है, बिकॉज दैट इज माई ड्यूटी नॉट टू मिक्स। क्योंकि हो सकता है कि वो चीजें वापस मांगे और वो बोलेगा मुझे मेरी ही चीजें चाहिए, तो उस समय अलग अलग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू मिक्स द बेलर्स गुड्स विथ हिज ओन। अगर चीजें सिमिलर दिखने में सिमिलर हैं, कई बार तो ऐसा होता है ना कि जो कैटल्स वगैरह रहते हैं, ओके, तो कैटल्स एक दूसरे से गांव में बोरो करते हैं, तो वो उनकी कैटल्स को अपनी कैटल्स के साथ मिक्स नहीं कर सकता। अगर मिक्स कर दिया तो फिर बेलर उसको पूरा बोलेगा नहीं, जो मेरे कैटल्स थे ना वो मुझे रिटर्न करो, मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं। बिकॉज एक्ट हैज गिवन दिस एज अ ड्यूटी टू बेली। ये प्रोटेक्शन के लिए है, बेलर की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि बेलर की चीजें एक्सचेंज ना हो जाए, कि उसकी अच्छी चीजें बेली ने अपने पास रख ली और अपनी खराब चीजें बेलर को दे दी। जो पुराने जमाने में, आपको तो पता नहीं, आपके पेरेंट्स को पता होगा, ऑडियो कैसेट्स आती थी, कैसेट्स। अभी तो पूरा हम लोग ऑनलाइन सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, पर जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं स्कूल में ही था, तब ऑडियो कैसेट्स आती थी। और वो ऑडियो कैसेट्स में एक उसकी खास बात थी कि उसके अंदर जो भी रिकॉर्डेड है, आप उसके ऊपर और भी कुछ गाने और रिकॉर्ड करा सकते थे, या उसको आप इरेज कर सकते थे। तो हम लोग क्या करते थे ना, जैसे ही 2-3 महीने हो जाते थे, कुछ नए गाने आ जाते थे, तो हम लोग उसकी लिस्ट बना लेते थे और अपनी एक पुरानी कैसेट उस दुकान वाले के पास लेके जाके उसको बोलते थे ये मेरी गाने की लिस्ट है और ये मेरी पुरानी कैसेट है, इसके ऊपर मुझे रिकॉर्ड करके दे दो। मतलब वो एक कैसेट 3-4 महीने तक ही यूज करते थे, उससे ज्यादा नहीं करते थे। तो वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट था, क्योंकि मैं मेरी चीजें, मेरी ऑडियो कैसेट उसे एक पर्पस के लिए दे रहा हूँ। क्या पर्पस है? उसके ऊपर गाने रिकॉर्ड करने का। तो अगर मेरी ऑडियो कैसेट बहुत ही वैलिड है, एक टीडी के कंपनी आती थी, टीडी के, फॉरेन कंपनी का एक ऑडियो कैसेट था, वो उस जमाने का बेस्ट क्वालिटी का ऑडियो कैसेट था। मतलब कितनी बार भी चलाओ, उसका टेप कभी खराब नहीं होता था और रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी आती थी। तो अगर मैंने एक रिकॉर्डर को वो कैसेट दे दिया रिकॉर्ड करने के लिए, और उसने क्या किया, टीडी के एक ही ऑडियो कैसेट थोड़ी होगा जो उसने मेरे को भेजा है, लाखों ऑडियो कैसेट्स थी। अगर उसने वहां पे मिक्स कर दिया मेरी ऑडियो कैसेट को, बाकी लोगों के साथ मिक्स कर दिया, और जब मैं लेने गया तब वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, तो मुझे पूरा हक है कि मैं वहां पे उसके साथ झगड़ा कर सकता हूँ कि मुझे मेरी कैसेट ही चाहिए। वो ऐसा नहीं बोल सकता अरे पागल, मैं टीडी के तेरे को दे रहा हूँ ना, मैं तेरे को वही तो दे रहा हूँ टीडी के। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे मेरी ही ऑडियो कैसेट चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी, उसके अंदर इस तरह का निशान लगा हुआ था, ये चीजें थी, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते। तो दैट वाज माय राइट एज अ बेलर एंड दैट वाज हिज ड्यूटी नॉट टू मिक्स माय गुड्स विथ हिज ओन गुड्स। तो जब आपका इस तरह से कोई मैटर आता है, तो ये आप जान लो कि एज अ बेलर आपका राइट है अपनी चीजें वापस लेने का, एंड एज अ बेली आपकी जिम्मेदारी है उन चीजों को मिक्स नहीं करना है। अगर आपने मिक्स कर दिया तो फिर आपको वही चीजें कैसे भी करके ढूंढ के बेलर को देना है, नहीं तो बेलर कोर्ट में जाएगा और जज भी उसको सपोर्ट करेगा। So that is the duty of Bailey not to mix Baylor's goods with his own. And the last one is duty to return any profit out. अगर उन गुड्स में से बेली ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न इट टू द ओरिजिनल बेलर। क्योंकि जो चीजें आपने बेली को दी हुई हैं, अगर उनमें से कुछ प्रॉफिट आया है तो वो ओनर को बिलोंग करता है, बेली को बिलोंग नहीं करता। और ओनर कौन है? बेलर है। सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न any profit which he has earned on the goods which has been given to him on bailment। बेलमेंट के अंदर जो चीजें उसे दी गई थी, अगर उससे कुछ फायदा हुआ है, तो वो फायदा जो भी है वो पूरा का पूरा
बेलर को रिटर्न करना है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली एज वेल। कल हम लोगों ने बेलर का सीखा था, आज बेली का सीखा था। अब इनको याद करने का मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। सी, बेलर एंड बेली, दीज आर द टू ऑपोजिट वर्ड्स, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, और राइट्स और ड्यूटीज भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो एक का राइट्स दूसरे का ड्यूटीज, और दूसरे का राइट्स एक का ड्यूटीज बन जाएगा। राइट, इस तरह से आप क्रॉस अगर आप कर देंगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग ही दिखेगी, हार्डली एक या दो पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा, अदरवाइज बाकी चीजें सेम ही है। तो अगर आपको बहुत लेंदी लग रहा है याद रखना, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का राइट्स और ड्यूटीज याद कर लो, समझ लो, बाकी के लिए वो ऑपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स राइट्स ऑफ द बेलर आर बिकमिंग ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट, एंड राइट्स ऑफ बेली आर बिकमिंग ड्यूटीज ऑफ बेलर। इस तरह से क्रॉस करके करेंगे तो ज्यादा समझेगा आपको। Okay, so with this note, I just stop the lecture at this point, and in our next period, we are going to understand about pledge. Pledge एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो बेलमेंट की तरह है और बेलमेंट से थोड़ा अलग भी है। और वो प्लेज जो है हम लोग लगभग लाइफ में एक बार तो एंटर करते ही हैं, तो इसके लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई जस्ट स्टॉप द लेक्चर